Hello friends, this is Dheeraj Mehta and I am warmly welcome to my YouTube channel Pharma Professional Community. Please grow the community, like, share and subscribe my YouTube channel. This is Pharma Professional Community. We grow the community, we help the community. Today my video topic is general terminology related to synopsis, research, thesis, research proposal related. I will explain each and every different terminology which relate to your thesis work and project research work. So please watch my video, like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Thank you very much. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. Warmly welcome to my YouTube channel Pharma Professional Community. Today my video topic is general terminology related to research work for master degree of pharmacy student, presented by me Dheeraj Mehta. My Pharma Professional Community YouTube channel always help to every people and every student. In this video I will explain in both language, Hindi as well as English also, so that everyone can get it my point. The purpose of this video is very simple: to understand the general terminology related to MPharm student, those who are not easily understandable, and some students are really misguided. They have lot of misconception for these terms. So I explain these basic terms so that you can understand the research in systematic and organized manner. So let's start. So अगर आप देख सकते हैं तो मेरे इस फर्स्ट स्लाइड पे फ्रंट पेजेस दिखा है. तो किसी भी सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, थेसिस, डिसर्टेशन की फाइल्स में कौन सी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या मैटर होने चाहिए, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल. हमारे रिसर्च का टाइटल क्या है, हमने किस टाइटल को चुना है हमारे रिसर्च वर्क को करने के लिए. देन आफ्टर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का नाम, हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी कॉलेज है. हमारा अपना नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, उसका अपना रोल नंबर, enrollment number, what type of enrollment number and what type of roll number, university they allotted, logo of university, sometimes college of university of logo also allotted, which branch, in pharmaceutics branch, in quality assurance branch, in pharmaceutical chemistry branch, in pharmacology branch, which type of branch you should also mention on the front page. Then session 2018-20, 2020-21, 2022-23, and college and university name. This all factors, this all key points are essentially mentioned on front page. This is the front page criteria. आपको अपने front page पे इतनी चीजें मिनिमम तो होनी ही चाहिए. आपका प्रोजेक्ट का नाम का टाइटल, कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, आपका नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, लोगो ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लोगो ऑल्सो, कौन सी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं अपने मास्टर डिग्री के थेसिस, डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल के लिए, आपका सेशन कौन सा है, कौन से सेशन में आप पढ़ रहे हैं 2018-19, और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये आपके फ्रंट पेज में आना चाहिए. सो नेक्स्ट स्लाइड इज डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट. समटाइम on after front page, declaration by principal also mentioned. In some university, declaration by candidate, this is the front page, and sometime declaration by principal and then declaration by guide and then declaration by candidate. But here I explain declaration by candidate page. मैं यहाँ पर explain कर रहा हूँ declaration by candidate इस पेज पर आफ्टर फ्रंट पेज हो जाने के बाद क्या क्या होना चाहिए. मैं अपनी स्लाइड को इस तरह से बनाया है दोस्तों कि आप समझ सके कि हमारा सीक्वेंस किस तरह से आना चाहिए. तो डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट में हम करेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर. उसके बाद हम लोगो ऑफ कॉलेज, हमारे कॉलेज का लोगो क्या है, हम उसे लेफ्ट और राइट साइड दोनों में अरेंज कर सकते हैं. देन कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है, लोगो ऑफ यूनिवर्सिटी क्या हो सकता है, हम उसे लेफ्ट राइट साइड में अरेंज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट. हमारा स्टेटमेंट कि हम डिक्लेयर करते हैं कि मैंने इस कैंडिडेट मैंने यहाँ से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और मैं ये जाहिर करता हूँ कि मैं स्टेटमेंट देता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट इनके अंडर में हुआ है, इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूट और इस डिपार्टमेंट से हुआ है. उस स्टेटमेंट देने के बाद हम लेफ्ट और राइट साइड ज़रूरत के हिसाब से हमारे गाइड हमें जो भी गाइड करते हैं उस हिसाब से हम हमारी सिग्नेचर और वहाँ हमारा एनरोलमेंट नंबर इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं. और देन डेट और प्लेस, मतलब डेट, किस डेट पे हमने साइन मारी है और किस डेट और कौन सी प्लेस पे हम वहाँ पर है. ये चीज़ें डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट पेज पर आनी चाहिए. सभी फ्रेंड्स और जो अभी भी लोग मास्टर्स डिग्री में पढ़ रहे हैं वो इस बात का ध्यान देंगे कि मिनिमम इतने की फैक्टर आपके डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट के पेज में आने चाहिए. देन आफ्टर डिक्लेरेशन बाय गाइड, आपके गाइड डिक्लेयर करेंगे वो वाला पेज भी आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों. तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है,
कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम सबसे पहले एज इट इज था, लोगो ऑफ कॉलेज, एकेडमिक गाइड प्रोफाइल, आपके एकेडमिक गाइड प्रोफाइल क्या क्या है। अगर आपके गाइड डॉक्टरेट है तो आपको उनके नाम के आगे डॉक्टर समथिंग जो भी हो आपका नाम हो वो, अगर वो प्रोफेसर है तो आपको उनका डेजिग्नेशन प्रोफेसर लिखना होगा, अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर है तो एसोसिएट प्रोफेसर लिखना होगा, और उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर अगर ज़रूरत पड़े तो, और लोगो ऑफ यूनिवर्सिटी आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों में लगा सकते हैं। फिर स्टेटमेंट, आपके गाइड डिक्लेयर करेंगे कि ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट मेरे अंडर में इस प्रोजेक्ट में काम कर चुका है और ये मैंने अपने खुद से इसके सारे डेटास को खुद इंटरप्रेट किया है और ये मैं जाहिर करता हूँ कि ये बंदे का और ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है। और फिर नीचे आपकी गाइड की साइन और स्टैम्प ऑफ गाइड, ये दोनों चीज़ें आएंगी। सेम एज इट इज, डेट और प्लेस, किस डेट पे साइन मारी। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि आपकी सिग्नेचर, आपके गाइड की सिग्नेचर और आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर की सिग्नेचर हमेशा सेम होनी चाहिए। मिनिमम गाइड डिक्लेरेशन बाय गाइड के पेज में ये इतने इसेंशियल फैक्टर आने ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिक्लेरेशन बाय प्रिंसिपल पेज पे। एज इट इज जैसा डिक्लेरेशन बाय गाइड पे और स्टूडेंट पे था उसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, लोगो ऑफ कॉलेज, आपके प्रिंसिपल सर का प्रोफाइल क्या क्या है और उनका लोगो ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल सर ये बताएंगे कि इनके इनके अंडर में ये गाइड, रिसर्च गाइड के अंडर में प्रोजेक्ट हुआ है, ये स्टूडेंट मेरी कॉलेज का इस ब्रांच का है और ये अभी मास्टर डिग्री में पढ़ रहा है, और प्रिंसिपल सर का साइन एंड स्टैम्प ऑफ प्रिंसिपल जो लगता है वो, और डेट ऑफ डेट एंड प्लेस। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में देखा गया है दोस्तों कि प्रिंसिपल सर अपना खुद का पेज कभी डालने के लिए नहीं कहते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपके प्रिंसिपल सर जो इंस्ट्रक्शन दे उस हिसाब से आपको आपके थीसिस में, रिसर्च प्रपोजल में, सिनॉप्सिस में, डिसर्टेशन में आपको उनका पेज लगाना है नहीं लगाना है, ये आप अपने एकेडमिक गाइड से डिस्कस कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए। मैं आपको सिर्फ इस पूरी जनरल टर्मिनोलॉजी में ये बताऊंगा कि आपका सीक्वेंस क्या क्या होना चाहिए और आपके पेजेस में क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए ताकि हर लेवल के स्टूडेंट्स इस बात को समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट देंगे कि मैंने इतने इनके अंडर में अपना प्रोजेक्ट किया है, इतने इतने लोगों ने मेरी हेल्प की थी, ये जूनियर्स, ये सीनियर्स ने मुझे मेरा काम करते समय बहुत मदद की। और उसमें आप चाहे तो बहुत कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जो भी हमेशा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से फॉर्मेट होता है, आप उस हिसाब से यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट्स अपने सीनियर्स से मंगवा सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट इस सीक्वेंस पे आएगा। देन लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ABC, CY, GHY, CSV, ये जो एब्रीवेशंस दिख रहे हैं आपको, कभी कभी स्टेटमेंट और पैराग्राफ में बहुत सारे एब्रीवेशंस दिखेंगे, तो उन एब्रीवेशंस को पेजेस की शुरुआत में एक एज अ पेज बनाकर एक्सप्लेन किया जाता है कि ये एब्रीवेशन है तो इसका फुल मीनिंग यहाँ पर। तो जो भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं आपके कोई भी थेसिस इंट्रोडक्शन में, मटेरियल्स मेथड में, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। यू आर एक्सप्लेन इन दिस ऑल एब्रीवेशन इन फ्रंट ऑफ दिस पेज सीक्वेंस, you should follow this sequence as this manner. Then index it should be right like this. This is the serial number, S dot N dot, S capital N capital, then content, then page number. This is the first introduction, page number first. It should be like this. आपको अपना इंडेक्स इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, एम, ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने हिसाब से इंडेक्स सेट करने के लिए स्टूडेंट्स को कहती है, लेकिन एज ए जनरल फॉर्मेट में आपको अपना इंडेक्स, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से सेट करना है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल नंबर, एज यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन, टेबल नंबर 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, पब्लिक टाइटल ऑफ टेबल एंड पेज नंबर। आपको अपने पेज नंबर मतलब आपका टेबल नंबर 1.1, उसका टाइटल, और वो टेबल 1.1 कौन से पेज नंबर आपके थेसिस के कौन से पेज नंबर पर है वो चीज़ आपको आपके थेसिस की शुरुआती जो पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो आप अपना पेज नंबर यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। देन लिस्ट ऑफ फिगर भी उसी तरह से, आपके फिगर इस तरह से आएंगे। लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ टेबल के बारे में अगर बात करें तो टेबल नंबर कभी भी आपको टेबल के ऊपरी भाग में लिखना है और फिगर हमेशा आपको फिगर के बॉटम यानी नीचे भाग में लिखना है। इस बात का हमेशा हर स्टूडेंट ध्यान रखे, ये जनरल चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आपने जो भी रिसर्च वर्क अभी तक किया है उसके ऊपर आप जो भी अपना शॉर्ट पेपर, रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर आप कोई भी रिस्पेक्टिव जनरल हाउस में, एल्सवेयर, साइंस डायरेक्ट, वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मा साइंस में पब्लिश करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको 200 से 250 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं चाहूँगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने बहुत से थीसिस और बहुत से रिसर्च पेपर जब पढ़े तो मुझे समझ में आया कि थीसिस की शुरुआत में एब्स्ट्रैक्ट भी लगाया जाता है दोस्तों। इससे आपका थीसिस, डिसर्टेशन एक इम्पैक्टफुल मैनर में बनेगा, जिससे इस थीसिस को पब्लिश किया गया है, रिसर्च को पब्लिश किया गया है एक रिस्पेक्टिव जनरल हाउस में। तो 200 से 250 पन्नों में आपको आपके 250 पेजेस में, शब्दों में, माफ कीजिएगा, शब्दों में आपको अपना थीसिस का रिसर्च एक्सप्लेन करना है, उसका सार देना है। ये एब्स्ट्रैक्ट एक पेज का आएगा।
उसके बाद इंट्रोडक्शन, आपके रिसर्च के रिलेटेड जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है आपको उसे लिखना है। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसर्च वर्क, राइट इन ओन लैंग्वेज, आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और आपको हमेशा ग्रामर, करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स, जो भी ग्रामर की मिस्टेक्स है वो आपको क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए ग्रामरली नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ दोस्तों। आप अपने डेस्कटॉप पे ग्रामरली को इंस्टॉल कर दीजिए और आप जो भी लिखते जाएंगे, आप पूरा लिखने के बाद ग्रामरली आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक्स, एरर निकालने हैं। देन राइट डाउन रिसर्च आउटपुट, आपके इस रिसर्च करने से क्या क्या आउटकम्स मिले आपको। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब आपके रिसर्च में अब आप क्या नया करने जा रहे हैं जो पुराना हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर जो लिमिटेशंस आई थी, तो उन लिमिटेशंस को आप बियॉन्ड द वॉल जाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम किस तरह से लिखेंगे, इन चीज़ों को आपको आज इस बार अपने डिस्कस करना है। ये आपका न्यू, इससे आपका प्रोजेक्ट एक यूनिक वे में बन जाएगा। देन आफ्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज द MEHTM मेहता DM, दिस इज मी, माई नेम इज धीरज मेहता, एंड एट ऑल, इसका मतलब होता है इटैलिक, एट ऑल, मतलब मेरे साथ जिन जिन ऑथर्स ने मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट पर वर्क किया है उनका नाम यहाँ पर हमेशा इटैलिक में लिखा जाएगा। ETAL डॉट 2020 में मैंने अपना रिसर्च किया, और ये 56 नंबर आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी अभी इंट्रोडक्शन में जो भी आपने, मैं रेफरेंसिंग दूंगा एट द एंड ऑफ माई पैराग्राफ, उसके बाद मुझे 57 की 55 के बाद जो 56 नंबर का रेफरेंस है वो मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे देना होगा। और उसमें मैंने अपना क्या क्या स्टेटमेंट इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दिया है, ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और इसको मैं हमेशा रिसर्च आउटकम लिखूंगा कि मैंने कौन से रिसर्च आउटकम लिटरेचर रिव्यू में मुझे मिले। एक्सट्रैक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्कोपस, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, ये जनरल और बहुत ही स्टैंडर्ड जनरल हाउस है जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। कहने का मतलब 2020 में अगर मैंने इसको रिसर्च किया है तो 2020 के, अगर मई में मैंने इसे किया है तो 2020 के जनवरी में मेरे ही रिलेटेड किसी आदमी ने या मेरी ही फील्ड के किसी आदमी ने दुनिया में कहीं भी कोई रिसर्च किया है तो वो भी चीज़, और वो अगर मेरे टॉपिक के रिलेटेड है तो उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर मुझे यहाँ लिखना होगा। उसे कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब 2020 मई में लिखा और मेरे फ्रेंड ने अगर 2020 जनवरी में लिखा तो वो चीज़ मुझे यहाँ लिखनी होगी, उसका भी मुझे रेफरेंस देना होगा। देन मैं इसको लिखूंगा और फिर उसे हमेशा राइट डाउन, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, अगर मेरे गाइड मुझे कहते हैं कि मुझे इसे टेबल फॉर्मेट में लिखना चाहिए तो मैं इसे टेबल फॉर्मेट में लिखूंगा। देन आफ्टर ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम ऑफ रिसर्च वर्क, मेरे रिसर्च वर्क का एम क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ रिसर्च वर्क। इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे रिसर्च का मेन मोटो क्या है, इससे हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे रिसर्च वर्क के, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी अच्छा है। इसके बाद चलिए बात करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, इनको हमेशा आपके हेडर फुटर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के रूप में आपको लिखना है। देन प्लान ऑफ वर्क, हाउ टू कंडक्ट प्लान। प्लान ऑफ वर्क में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा रिसर्च किस तरह से चल रहा है, उसे हम किस तरह से हमारे रोज़मर्रा के काम में इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउ टू कंडक्ट प्लान, हमें प्लान किस तरह से कंडक्ट करना है। हाउ टू इम्प्लीमेंट वर्क, हमें वर्क किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हमें अपने रिजल्ट किस तरह से लिखने हैं। हमें टाइमलाइन मैनेज करनी होगी कि अगर हम जनवरी से अगर हमारा रिसर्च शुरू कर रहे हैं तो फरवरी में हम क्या करेंगे, मार्च में हम क्या करेंगे, 15 दिन के अंतराल में, 30 दिन के अंतराल में हमने क्या क्या किया, और उन सभी अंतराल की सारी रिपोर्ट्स को हम हमारे गाइड के सामने एक्सप्लेन करेंगे, जिस और उससे उनका वेरिफिकेशन लेके उनके काउंटर साइन ले लेंगे हमारा कोई भी काम शुरू करने से पहले, और हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और सिस्टमिक मैनर में चलता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई योर गाइड, वेरीफाई विथ योर गाइड विथ ऑल स्टेप्स, दिस ऑल फॉलोइंग मैटर इन प्लान ऑफ वर्क, आपको वहाँ पर लिखना है प्लान ऑफ वर्क के अपने थीसिस में। देन आफ्टर ड्रग एंड पॉलीमर प्रोफाइल, ड्रग एंड पॉलीमर प्रोफाइल का मतलब है नेम, वहाँ पर हम हमारे ड्रग का नाम लिखेंगे जिस भी ड्रग पर हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम कोलॉजी का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कोई ड्रग अगर हमने कॉम्बिनेशन में लिया है, अकेले लिया है, और उसका हम प्लान, उसके एनिमल्स पे अगर हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें उस ड्रग के बारे में सब कुछ लिखना होगा। ड्रग एंड पॉलीमर प्रोफाइल में नेम, स्ट्रक्चर, उसका आईयूपैक नेम, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फार्माकोलॉजिकल स्टडी और बहुत कुछ। फिजिकल प्रॉपर्टी में बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर क्या है, ये चीज़ें हम लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी सोलिबिलिटी लिखेंगे हम, उसकी बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। फार्माकोलॉजिकल स्टडी में हम उसका फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, फार्माकोडायनामिक, साइड इफेक्ट, टॉक्सिकोलॉजी, क्लियरेंस, TUC,
Tmax, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ड्रग के बारे में हमें कितनी जानकारी है और हमें इन चीज़ों को कहाँ से इंफॉर्मेशन दी है। पॉलीमर प्रोफाइल में अगर हम सुटिक्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें ड्रग और पॉलीमर, उसके साथ के एक्सिपिएंट्स, एडजुवेंट्स की इंफॉर्मेशन हम इस ड्रग प्रोफाइल पॉलीमर में डालेंगे और हम एक्सिपिएंट्स के बारे में लिखेंगे, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि ड्रग और पॉलीमर इंटरेक्शन और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से है, जिससे हम समझ सके कि हमारा प्रोजेक्ट किस दिशा में जा रहा है और हम किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग एंड पॉलीमर प्रोफाइल को हम मटेरियल एंड मेथड्स के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अलग लिखने का मैटर ही ये है कि हम इसको डिटेल में समझ सके कि हमें इसे क्यों लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स एंड मेथड्स, इसको हमेशा मटेरियल्स, एल लास्ट में एस, एंड मेथड्स लिखा जाता है। इसमें मटेरियल लिस्ट, हमने किन किन मटेरियल्स की लिस्ट को यूज़ किया है, जैसे अगर हम कोई लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उन लिस्ट को हमने कहाँ से परचेस किया इसके बारे में लिखेंगे। परचेस फ्रॉम विच प्लेस, मतलब हमने कौन से प्लेस से इसको परचेस किया। अगर हमने बॉम्बे से परचेस किया है, बैंगलोर से परचेस किया है, तो हम इसे लिखेंगे। और उनका एक सर्टिफिकेशन भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर हमने ड्रग कहीं से मंगवाया है, बॉम्बे से किसी लेबोरेटरी से मंगवाया है, तो उस लेबोरेटरी का एक प्रायर सर्टिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए, जो आपको अपने अपेंडिसिस सेक्शन में, थेसिस के लास्ट सेक्शन में लगाना है, जिससे हम पता चल सके कि हमारा वर्क कंप्लीट ऑथेंटिक और काफ़ी यूनिक है, हमने कोई भी फेक वर्क नहीं किया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कोलॉजी में और इन सब चीज़ों में, और सुटिक्स में भी, कि अगर हम कोई ड्रग परचेस कर रहे हैं तो उसका एक प्रायर सर्टिफिकेशन हमें लगाना होगा। देन एक्सपेरिमेंटल वर्क प्रोसीजर हम लिखेंगे इसमें, कौन सी प्रोसीजर्स को हम दूसरे आर्टिकल्स में से निकाला और वो हम हमारे मटेरियल्स एंड मेथड्स में डाल रहे हैं। उसके बाद चार्ट एंड फ्लो चार्ट्स डालेंगे हम मटेरियल्स एंड मेथड्स में, और इससे हमारा मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन यहाँ खत्म हो जाता है। ये जनरल चीज़ें इसमें आएंगी हमारे इसमें। देन रिजल्ट एंड डिस्कशन, इसमें टेबल्स आएंगे, रिजल्ट स्टेटमेंट, ग्राफ, फिगर, इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। हम रिजल्ट एंड डिस्कशन को काफ़ी यूनिक और काफ़ी स्मार्ट तरीके से हम इसे लिखेंगे। हम इसे बहुत लंबा नहीं लिख सकते। अगर हम चाहें तो हर रिजल्ट्स को टैबुलेटर फॉर्मेट में लिखे तो वो काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक दिखेगा, काफ़ी प्रिसाइज दिखेगा, जिससे हम किसी भी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सके। और मैं आप दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने रिजल्ट्स के साथ एक्सेप्टेंस लिमिट हमेशा लिखा कीजिए। जो एक्सेप्टेंस लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट होती है हार्डनेस की, थिकनेस की, जिससे अगर हमारे रिजल्ट्स हार्डनेस और इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट में आए हैं तो सामने वाला, पढ़ने वाला ये समझ सके कि ये बंदे का या ये स्टूडेंट का जो वर्क है काफ़ी ऑथेंटिक है। ये रिजल्ट एंड डिस्कशन में लिखने की बहुत ज़रूरत है। देन आफ्टर समरी एंड कंक्लूजन, समरी एंड कंक्लूजन इन शॉर्ट में हमें लिखना है कि हमने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया, और बहुत ही सिस्टमेटिक और कॉम्पैक्ट मैनर में लिखना है, और काफ़ी छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम समरी एंड कंक्लूजन लिखेंगे। देन आफ्टर फ्यूचर स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज फ्यूचर स्कोप इन दिस रिसर्च वर्क, हमारे रिसर्च वर्क का फ्यूचर स्कोप क्या क्या होना चाहिए, इससे आने वाले फील्ड में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या आपके इसमें यूनिक चीज़ है जो अब तक इंडस्ट्री में नहीं होती आ रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ की प्रैक्टिस है जो क्या उन प्रैक्टिसेस को हमारा रिसर्च इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। विच आउटकम रियली हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, कौन सा पैरामीटर हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और उससे साइंटिफिक मैनर से अगर हम किसी से अगर रिव्यू करवाते हैं हमारा प्रोजेक्ट तो क्या वो अच्छा है या नहीं, इसके फॉलोअप्स भी हमें हमारे साइंटिस्ट से ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स आ सकी है जहाँ पर आप अगर अपने क्वेरी अगर डालें तो सामने वाले एक्सपर्ट उसका आंसर आपको डेफिनेटली देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नॉट इन दिस रिसर्च और नॉट इन रिसर्च वर्क। कहने का मतलब क्या हमारा पूरा रिसर्च वर्क किया हुआ कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या नहीं, मतलब वो चीप है या नहीं। अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हिसाब से अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा है तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट में रिसर्च वर्क में हाथ डालना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो काफ़ी पैसे महंगा होगा, और अगर उसमें कोई भी ज़्यादा अपना पैसा डाले तो उसके लिए आपको ऐसे इन्वेस्टर ढूंढने होंगे और ये काफ़ी माथापच्ची का काम हो जाएगा। इसलिए आप जो भी प्रोजेक्ट करें उससे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, कम कॉस्ट में उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ ढूंढ कर आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो सस्ता होना चाहिए, इस बात पर आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस हम कौन सी स्टाइल में लिखते हैं, हमें हमारे गाइड जो कहते हैं उस हिसाब से हम वैनक्योर स्टाइल में, ऑक्सफोर्ड, अमेरिकन, IEEE स्टाइल में हम लिख रहे हैं या नहीं। आप इन चारों का नाम अगर वन बाय वन गूगल पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू राइट वैनक्योर सिस्टम, ऑक्सफोर्ड एंड अमेरिकन, IEEE। इन सभी रेफरेंसिंग स्टाइल के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, जिसमें लिखा है रेफरेंसिंग कैसे दी जा सकती है विदाउट ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग मेंडले सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेंडिसिस, ये सेक्शन थीसिस में सबसे एंड में होता है, जिसमें हमने हमारे इस रिसर्च वर्क को जो हमने अभी किया है, जिसका टाइटल मैंने आपको बताया है, उसका आर्टिकल और उसका सर्टिफिकेट्स हमने लगाया है या नहीं, ये चीज़ हम अपेंडिसिस में डालेंगे। अपेंडिसिस को दूसरा नाम एनेक्स्चर भी लिखते हैं। एनेक्स्चर का मतलब होता है
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एडिशनल फाइल। इसमें हमने जो आर्टिकल पब्लिश किया है, क्या हम उस आर्टिकल को हमने लगाया है या नहीं, हमने अगर इस पूरे थीसिस वर्क को किसी कॉन्फ्रेंस में लेके तो उसका सर्टिफिकेट हमने इसमें लगाया है या नहीं, ये चीज़ें अपेंडिसेस सेक्शन में आएंगी। देन आफ्टर प्लेगरिज्म रिपोर्ट, इन दिनों में काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी कट कॉपी पेस्ट करके अपने थीसिस और रिसर्च वर्क बनाकर एम.फॉर्म मास्टर डिग्री कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। आपको इससे सीखने कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आपने सीखा नहीं है तो आप आगे चलकर नक्की अटकेंगे, ज़रूर अटकेंगे। तो इसके लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने आजकल न्यू रूल निकाले हैं प्लेगरिज्म का। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मेंडले, ड्रिलबिट, स्मॉल स्टूल, डुप्ली चेकर। इन सभी सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप अपने पूरे थीसिस को, पूरी कंप्लीट होल रिपोर्ट को इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से ये जान सकते हैं कि क्या आपका रिसर्च वर्क ऑथेंटिक है या नहीं, और अगर वो ऑथेंटिक है तो उसका रेशो कितना है। कहने का मतलब, अगर प्लेगरिज्म 13% यहाँ पर दिखा रहा है और 87% यूनिक है, तो ये एक्सेप्टेबल रेशो है हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ये रेशो यूनिवर्सिटी वाइज चेंज भी हो सकता है, तो दोस्तों आप अपना ये रेशो हमेशा अपने गाइड से पूछ सकते हैं कि हमें किस तरह का रेशो यहाँ पर रखना है प्लेगरिज्म रिपोर्ट में। आप एक बार इन सभी नामों को ध्यान से देख लीजिए, मेंडले, ड्रिलबिट, स्मॉल स्टूल, डुप्ली चेकर। इनके अंदर आप अपनी थीसिस रिपोर्ट को अपलोड कर दीजिए, और जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट इशू करने के बाद आपकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी, वो आपको प्लेगरिज्म दे देंगे और वो आप रिपोर्ट अपने इसमें लगा सकते हैं। ये एंड में या फिर शुरुआत में ये रिपोर्ट लगानी है, इसके बारे में आप अपने गाइड से डिस्कस कर सकते हैं। सिनॉप्सिस मैं आपको बताऊंगा कौन सी जनरल टर्मिनोलॉजी है, सिनॉप्सिस का मतलब मीनिंग क्या होता है। A synopsis is a tool for writing process. It helps verbalizing the idea of the paper and at the same time make it more concrete. It helps you to focus on structure of the paper. Synopsis is a writing tool. ये एक writing tool होता है, और ये हमारी ideas को verbalizing matter में हम लिखते हैं, जो हमें हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट के पहले देना होता है। सेमेस्टर 3 का पार्ट है सिनॉप्सिस बनाना। मैं आपके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू मेक अ सिनॉप्सिस। इसके बाद बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल जनरली पीएचडी में होता है, एमकॉम में भी होता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। इसका मीनिंग ये होता है, ए रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट proposing a research project generally in the science or academia and generally constitute a request for the sponsorship of that research। इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि हमने अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस कर ली, उसकी एक रिपोर्ट भी अगर हमें कभी गाइड मांगे तो वो हमें देनी पड़ती है। उसका मीनिंग ये होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड लाइक, a document that explain in detail how you far you have gone towards the completion of project। आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कितने नज़दीक आ चुके हैं, उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। देन आफ्टर डिसर्टेशन, डिसर्टेशन ऑकर्स ड्यूरिंग डॉक्टरल स्टडी। जो हम डॉक्टरेट की स्टडी करते हैं, पीएचडी की, उसे डिसर्टेशन कहते हैं। कुछ कुछ वेबसाइट पे इसको एमफॉर्म की स्टडी के बारे में कहा गया है, कुछ कुछ वेबसाइट से डॉक्टरल स्टडी के बारे में कहा गया है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपके गाइडलाइन से क्या कहा गया है, उस हिसाब से आप अपना काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन लैंग्वेज में दोनों में इनका मीनिंग अलग अलग दिखाया गया है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में हमें इसे डिसर्टेशन ये डॉक्टरी के लिए होता है, और कुछ कुछ कंट्री में डिसर्टेशन ये मास्टर डिग्री के लिए होता है, थेसिस ये डॉक्टरी के लिए होता है, और डिसर्टेशन मास्टर डिग्री के लिए होता है। तो ये वाइस वर्सा है, इसे आप, इसका फ़र्क आप समझिएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में और इनके मैटर में, दोनों में डिफरेंस आता है। एम, ऑब्जेक्टिव, प्लान ऑफ वर्क, अपेंडिसेस एंड एवरीथिंग। अब थेसिस के बारे में बात करते हैं। द थेसिस is a project that make end of master program. The point of thesis is to show your ability to think critically about a topic and knowledgeability discuss the information in depth। क्या आप किसी टॉपिक के ऊपर क्रिटिकली थिंक कर कर, हर उस पहलू से सोच कर, क्या आप किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, नहीं एज पर इंडस्ट्रियल आइडिया, इसे कहते हैं थेसिस। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च आर्टिकल एंड रिव्यू आर्टिकल। ये क्या होता है। Research article sometimes referred to as a empirical and primary source report on original research। जो हम ओरिजिनल रिसर्च करते हैं उसका हम एक रिसर्च आर्टिकल बनाते हैं और हम उसे पेश करते हैं। ऐसी कोई आइडिया, ऐसा कोई इन्वेंशन जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ हो, उसे रिसर्च आर्टिकल कहते हैं। उसके ऊपर हम कोई तो भी स्टेटमेंट, राइटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। और रिव्यू आर्टिकल का मतलब होता है समटाइम्स कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू और सेकेंडरी सोर्सेज सिंथेसाइजेस और एनालाइज रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड इन प्राइमरी सोर्सेज। कुछ रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हम उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चले, अलग अलग नज़रिए से हम उसे देखने की कोशिश करते हैं और हम उसे फिर से रीराइट करते हैं रिव्यू आर्टिकल्स को, उसे रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल का। शॉर्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है शॉर्ट कम्युनिकेशन, ब्रीफ डिस्कशन ऑन करंट टॉपिक्स।
जो अभी करंट में कोविड टॉपिक चल रहा है इसके ऊपर कौन से शॉर्ट कम्युनिकेशन हम 2-3 पैराज में एक्सप्लेन करके हम उसके ऊपर ब्लॉग्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स लिख सकते हैं। हम इसका शॉर्ट कम्युनिकेशन हम न्यूज़पेपर में इसका ऐड दे सकते हैं कि एज हम वी आर एम फार्मेसी स्टूडेंट एंड वी एक्सप्लेन द शॉर्ट कम्युनिकेशन ऑन कोविड-19 सिचुएशन। सो शॉर्ट कम्युनिकेशन के बारे में हम लिख सकते हैं। ये भी एक हमारे मास्टर डिग्री का प्रोग्राम का एक पार्ट है और एक ये एक्टिविटी है एक्स्ट्रा करिकुलर में। देन आफ्टर कॉन्फ्रेंस, हम कॉन्फ्रेंस का मतलब समझेंगे इन एकेडमिया एंड लिबरलशिप। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इज अ कलेक्शन ऑफ एकेडमिक पेपर पब्लिश इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप। वर्कशॉप में हमें जो अभी तक कोई भी वर्क किया हुआ रिसर्च वर्क हम उसे कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन करेंगे, उसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है दोस्तों। देन आफ्टर ग्लॉसरी, a list of special or unusual word and their meaning usually at the end of text book। हमारे थीसिस के एंड में जो कठिन शब्दों का अर्थ सरल भाषा में लिखा होता है उसे ग्लॉसरी कहते हैं, तो हम उसे लिखेंगे। इसमें लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन और ग्लॉसरी में फ़र्क आता है। ग्लॉसरी में हम कंप्लीट डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन में हम सिर्फ कोई ABC ऐसा नाम हो, QTP है, क्वालिटी टारगेट ड्रग प्रोफाइल है, तो हम उसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन में, लेकिन ग्लॉसरी में हम उसको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। Then after hypothesis, a hypothesis is a precise textual statement of what the researcher predict will be the outcome of study। किसी रिसर्चर ने कोई स्टडी की है तो उसके पर्टिकुलर आउटकम्स क्या क्या मिले और उसने उसे क्या प्रेडिक्ट किया। कोलॉजी में बहुत सारे ड्रग्स के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस साइंटिस्ट दे चुके हैं, लेकिन हम उन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब कोई हाइपोथेसिस हमें पहले से चलता आ रहा है और उस हाइपोथेसिस को कंप्लीट अश्योर और कंप्लीट प्रूव करने का कोशिश जब हम मास्टर्स के स्टूडेंट करते हैं तो उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। उसमें 2 प्रकार आते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये सभी टर्मिनोलॉजीज हमारे रिसर्च के रिलेटेड है, इसलिए मैं अपने वीडियो का नाम जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिसर्च वर्क फॉर एम स्टूडेंट लिखा है। देन फॉर्मेटिंग, हमारे रिसर्च की जनरल फॉर्मेटिंग कैसी होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को फॉर्मेटिंग फॉर थीसिस, डिसर्टेशन, सिनॉप्सिस के लिए फॉर्मेटिंग की सारी टूल्स देते हैं। तो मैं आपको जनरल चीज़ें बताऊंगा जो मैंने महसूस की अपने मास्टर डिग्री के दरमियान। मतलब हमारा जो फॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। सेंटेंस के फॉन्ट का साइज 12 सेंटेंस होना चाहिए। अगर हम कोई हेडिंग दे रहे हैं तो उसका हेडिंग का साइज 14 होना चाहिए, वो भी टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए एज अ स्टैंडर्डाइज एंड सिस्टमिक मैनर। हर पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेसिंग इज 1.5 और Ctrl+J का कमांड दबाकर सिलेक्ट ऑल करके जस्टिफाई, ईच पैराग्राफ को हमें जस्टिफाई करना है, मतलब वो एक सिस्टमिक मैनर में दिखेगा। हमें जो भी हेडिंग है उसे हमेशा Ctrl+A की कमांड से हेडिंग ऑलवेज बोल्ड रखनी है। हमें रेफरेंस को हमेशा स्क्रीन पर दिखाए गए जो 1 है और 2 है एट द एंड ऑफ पैराग्राफ इस तरह से लिखना है। हमें हमारा टेबल नंबर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ऑलवेज राइट ऑन टॉप में लिखना है। फिगर नंबर हमें हमेशा फिगर के नीचे लिखना है। फॉर राइटिंग द इक्वेशन, कोई भी गणितीय सूत्र हमें MS वर्ड के इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद फंक्शनल डिटेल्स में जाकर लिखना है, उसका इस्तेमाल करना है। और फिर अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग के बारे में तो सिलेक्ट A4 साइज, कोई भी काम शुरू करने से पहले A4 साइज पेज हमें सिलेक्ट कर लेना है और उसकी टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन हमेशा हमें इस मैनर में रखनी है 2.54 और लेफ्ट मार्जिन हमेशा 3.18 रखनी है। इस मार्जिन को रखने से हम जब भी हमारा प्रोजेक्ट लास्ट में जब प्रिंट मारेंगे तो अगर ये मार्जिन रही तो हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ भी नहीं होगी, हमारे सारे फॉन्ट्स इजीली विजिबल होंगे। अदरवाइज अगर हमने काम ऐसे ही शुरू कर दिया और अगर हमने हमारी फॉर्मेटिंग काम शुरू करने से पहले नहीं की तो हमें फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स में काफ़ी दिक्कतें जा सकती है दोस्तों। तो आप इन फॉर्मेटिंग की स्लाइड्स को काफ़ी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। देन सेपरेट हेडर फुटर रखने के लिए हमेशा अगर हम एक ही फाइल में हमारे सारे एम ऑब्जेक्टिव सब कुछ लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग चैप्टर टाइप करते हैं और उसके बाद उसको एक कर देते हैं। अगर हमें हमेशा अखंड पूरी फाइल एक साथ रखनी है तो उसे हम हमेशा पैराग्राफ के एंड में हमारे कर्सर को ले जाएंगे और लास्ट पेज के एंड में हम उसे सिलेक्ट क्लिक करके पेज ब्रेक का ऑप्शन लगाएंगे। पेज ब्रेक का ऑप्शन लगाने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद हम उसे रिमूव लिंक ऑफ प्रीवियस पेज, हेडर पे जाकर उसको रिमूव प्रीवियस पेज के लिंक को हम उसे डिलीट कर देंगे, जिससे फर्स्ट पेज से हमारा सेकंड पेज कट जाएगा। अगर हम सेकंड पेज पे कोई भी कमांड लगाते हैं तो वो फर्स्ट पेज पे आपको नहीं दिखेंगी, जिससे हम हमारे हेडर फुटर को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी ईमेल कर सकते हैं किसी भी नए सुझाव के लिए, नए वीडियोज़ के लिए। आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्लैड टू यू
You always support me as a farmer professional community YouTube channel. We grow the community, we help the community. Thank you very much.